Good morning, everyone. Today is the last class for complex numbers, wherein I am going to consider few questions from miscellaneous, followed by a new concept, very important, not given in NCRT book. Consider this question. Find the number of non-zero integral solutions of this equation. So non-zero integral solution, and this is 1 minus x mod, and this is 1 minus iota, and this is 2 power x. So simply 1 minus iota का mod क्या हो जाएगा? रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर x गिवन है, and this is 2 की पावर x. This is basically root 2 की पावर x, और रूट 2 की पावर x का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2. इस स्टेप को ध्यान से, ये आपके बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात हो रही है. इन अदर वर्ड 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x. बेस सेम है, पावर्स आर इक्वल. रीअरेंज and this will give me the value of x as 0. So what is the answer? No solution. Check this out. It is given no non-zero solution. ये इसका solution तो आ गया है, but this is a zero. But वो तो हमारे solution part में है ही नहीं, therefore no solution, which is your required answer. We already have discussed the concept behind this question. If a plus iota b into c plus iota d into e plus iota f into g plus iota h and so on. ये कुछ ऐसे दिया है, a plus iota b, आपको ये रिजल्ट शो करना है. सो हार्डली 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, and there are 2 different approaches. Either you take conjugate both the sides, or you take modulus both the sides. So taking conjugate both sides, conjugate का मतलब ये हो गया, and then recall conjugate get distributed in a way, प्रोडक्ट में है, इसके साथ अलग हो जाएगा, फिर इसके साथ अलग हो जाएगा, एंड सो ऑन. एंड कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? आयोटा को रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से. तो ये फर्स्ट टर्म, There is an H beside the G. अच्छा जी एच है, अच्छा मैंने एफ लिख दिया, ओके ठीक है, लेट मी करेक्ट दैट. So this is H over here, right? So a basic idea for conjugate, iota will become minus iota, and this will become of course a minus iota b. इस रिलेशन को जो गिवन है 1 कह दिया, इसे सेकंड कह दिया. व्हाट शुड वी डू नाउ? चेक करो क्या करें. Multiply. मल्टीप्लाई 1 and 2, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर. सोचिए जरा ध्यान से, जब आप 1 and 2 को मल्टीप्लाई करेंगे,
ये फर्स्ट टर्म जब मल्टीप्लाई होगा a plus iota b into a minus iota b, isn't this product equal to a square plus b square? Similarly, when I consider say second term, इनका प्रोडक्ट मुझे दे देगा c square plus d square and so on. तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है a plus iota b, a minus iota b, वो RHS दे देगा. बस इसके बाद तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है. तो आपको वो पूरा स्टेप नहीं भी लिखते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन. सो टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करा सिस्टमैटिक मैनर में एंड हेंस शॉन. You may try solving the same question taking modulus both sides. वो आपकी चॉइस है. बाकी आई जनरली प्रेफर एंड रिकमेंड टू गो फॉर कॉन्जुगेट अप्रोच. आप मॉडुलस से भी बिल्कुल कर सकते हैं. This is a new concept, kind of a questions which are not given in your NCERT book. Check this out. If x is 3 plus 2 iota and you are to find this value, x power 4 minus 4x cube plus 4x square plus 8x plus 44. So one of the common sense, I mean the method says x is given to me. Let me substitute the value of x. x की value substitute कर देंगे and then we simplify. But remember what will happen in that case. First term क्या होगी, इसकी power 4, फिर क्यूब. तो आपको ये स्क्वायर, क्यूब और फोर्थ पावर हर एक का ये निकालना पड़ेगा as such. So that is actually going to be a very cumbersome and a very typical task. तो हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे. We are not going to directly substituting these values. तो here comes the approach. कि अगर ऐसे नहीं करना तो कैसे करेंगे. Look carefully. X is 3 plus 2 iota. आयोटा की टर्म अलग रख दो. मतलब ये like this. Iota वाली टर्म on one side, remaining as it is. Squaring both the sides. A square plus b square minus 2ab. और RHS का स्क्वायर बहुत ध्यान से क्या आएगा, 2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है, -4. that is -4. So rearrange x square minus 6x पहले लिख देना और ये हो गया +13 and that is equal to 0. So this is the first step of this question. क्यों किया है वो अभी क्लियर हो जाएगा. But get this expression, a quadratic one. And then now consider the corresponding polynomial. ये तो एक आपके पास देखा जाए तो इक्वेशन बनकर आ गई है ना, बट आप इससे corresponding polynomial ले लीजिए. क्या मतलब, कंसिडर ये वाली डिवीजन आप इस पॉलिनोमियल से जो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू निकालनी है ये है, डिवाइड कर दो. नॉर्मल डिवीजन जो आपने 8th में और 9th में स्टडी किया हुआ है. व्हाई दिस डिवीजन, अगेन ये क्लियर हो जाएगा. यूज द यूजुअल अप्रोच. याद है हाईएस्ट ये इन दोनों को डिवाइड करा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया. इस एक्स स्क्वायर को इस तीनों से पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स पावर 4 माइनस
6x³ प्लस 13x²। प्लीज मेक इट श्योर ये आपको याद है ये कैसे मैंने एकदम से डिवाइड किया है। और इसके बाद क्या हो जाता है, साइन विल चेंज, साइन चेंज, ये और ये कैंसल, लाइक टर्म्स से ये आ गया 2x³ एंड देन माइनस 4x² माइनस 13x², तो माइनस में आ जाएगा 9x²। कॉपी द अदर टर्म्स एज इट इज। नेक्स्ट क्या होगा, डिवाइड जो करते हैं इसे और इसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया, प्लस 2x। और अब इस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल गिव मी 2x³ माइनस 12x² प्लस 26x। Follow the usual method, change 2x³ cancelled, 3x² and this will be कितना आ जाएगा, ये 26 में से 8 गए हैं और माइनस वाला हुआ है एंड देन यस फाइनली फिर इस 3x² को इस x² से डिवाइड करो, बट अब वी आर गेटिंग 3 और अब 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग 3x² माइनस 18x प्लस 39। चेंज द साइन, बाई चांस ये दोनों ही कैंसिल हो गए एंड वी लेफ्ट ओनली विद 5। अब आपके पास लॉजिक, ये क्यों करा था डिवीजन, अब बहुत ध्यान से देखना, और वो क्लास 6th में या 5th में पढ़ा हुआ है। नाउ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो ये तो कॉमन चीज है। अब हमारा इस डिवीजन को ध्यान से देखिए, इस पूरी डिवीजन के अंदर डिविडेंड क्या था, x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 44। व्हाट इज डिवाइजर, x² minus 6x plus 13. x² माइनस 6x प्लस 13, कोशेंट x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस रिमाइंडर वो 5 आया है। अब एक बार फिर लॉजिकली देखिए, x² माइनस 6x प्लस 13 वो तो एक्चुअल में 0 के इक्वल था, तो ये चीज जो है ये तो 0 है। अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0 एंड आई लेफ्ट विथ 5। क्या मतलब, मैंने इस वैल्यू को जस्टिफाई कर दिया 5 के इक्वल, यही तो वैल्यू आपको निकालनी थी, योर रिक्वायर्ड आंसर। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, इंपॉर्टेंट टाइप है और सिंपल क्वेश्चन है। Before we move on further, please mark your attendance chat box में everyone।
Mark your attendance quickly. So the basic fundamental अगर आइडिया क्लियर हो गया है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी सिमिलर. आपको एक इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है एंड एक्स इज गिवन टू मी. बस अब थोड़ा सा लॉजिक. एक्स इज 2 और ये कितना लिखा है, ये टर्म हो गई एक्चुअल में +3 आयोटा, √3 √3 आयोटा. और आयोटा की टर्म अलग करनी है तो ये x -2 आ गया इसके इक्वल. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फॉलोड बाय यूजुअल स्टेप. स्क्वायरिंग करा, a² + b² - 2ab. RHS का स्क्वायर -3 आएगा. चेक कर लीजिए. √3 का स्क्वायर 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 एंड देन रीअरेंज. आ गया जैसे लास्ट क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक से बनकर आया था. और अब क्या करेंगे, यूजुअल मेथड. इस क्वाड्रेटिक से आप डिवाइड कर देंगे जो भी वैल्यू निकालनी है. आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट 2 minutes. एवरीवन डू दिस डिवीजन, बट बहुत स्मार्टली और ध्यान से करना. इसमें एक ऑब्जर्वेशन आपने किया या नहीं करा, क्यूबिक वाली टर्म मिसिंग है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके डिवीजन में. तो व्हाट आई वुड जनरली रिकमेंड इन सच केस, इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या लिखिए, मिसिंग वाली टर्म भी साथ में लिख दो. वो क्या है, क्यूबिक वाली नहीं है ना, तो 0 × x³ लिख दीजिए. तो चांसेस के कोई गलती नहीं होगी. बाकी दिस इज ऑप्शनल, बट इससे बेनिफिट क्या होगा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही लिखी जाएगी. तो क्यूबिक वाला इसी के नीचे आएगा. इसीलिए यू मे राइट दिस एक्स्ट्रा टर्म ओवर हियर. नाउ प्लीज डू द डिवीजन. आई एम वेटिंग. I'm assuming you all are doing it.
यू ऑल गेटिंग दिस? एक बार इंश्योर करिए। इज इट द रिमाइंडर यू आर गेटिंग 16x minus 28? आंसर बाद में। इज इट करेक्ट और कहीं कोई गलती हुई है? डू लेट मी नो। Is there anyone who is actually doing it? Sir, shouldn't it be x square plus 4x plus 5? कहाँ पर कह रहे हो गलती हुई है? Same Sir, question. Sir, no, you are correct. We must have done. Sir, in नहीं, last step, I had also done the same mistake on addition subtraction. ये आ रहा है या नहीं आ रहा? 16x minus 28. This is my question. Sir, actually, we did something. We did a mistake, so we are doing it once again. चलो do it please. Everyone verify. बट इस तरह की वैल्यू आ सकती है। जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चलो कांस्टेंट, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 5 आया था या कुछ वैसी वैल्यू आ जाए, बट यू मे गेट द रिमाइंडर इन टर्म्स ऑफ x also, so that now usual dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. सो डिविडेंड तो हमारा द वैल्यू जिसकी निकालनी है वो था, डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, कोशेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 एंड रिमाइंडर आ गया 16x माइनस 28। डिवाइजर एक्चुअल में 0 था, ये लिखकर दिखाना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। ये आ गया, सो मीन्स ये तो 0 हो गया, बच गया 16x माइनस 28। अब x कितना था? x की वैल्यू ये रही, तो x की जगह लिख दिया 2 प्लस रूट 3 आयोटा एंड देन माइनस 28, तो 32 प्लस 16 रूट 3 आयोटा माइनस 28, 13 में से 22 गए, और सॉरी 28 गया, तो ये आ गया 4 प्लस 16 रूट 3 आयोटा। सो दिस कुड बी योर पॉसिबल रिक्वायर्ड आंसर। वो अब आप वेरीफाई कर लीजिए सभी, बट ऑल डिपेंड्स आपका डिवीजन जो है वो ठीक हुआ है। राइट, सो आप चेक कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अदरवाइज अगर मैं x की वैल्यू पुट करने लग जाता क्वेश्चन में, x की वैल्यू यहां पुट करूंगा, इट विल बी एक्चुअली वेरी वेरी कैलकुलेटिव, बट यूजिंग अ कॉमन सेंस और जो ये अप्रोच है डिविडेंड वाली, इससे कैलकुलेशन में सिर्फ मुझे x की ही तो वैल्यू पुट करनी रही, फॉलोड बाय अ सिंपल सॉल्यूशन। This is the question for your homework. Very similar problem. पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस ये कितना हो जाएगा एक्चुअल में 2 आयोटा। तो x आपको गिवन है -5 प्लस 4 आयोटा, और x प्लस 5 इज 4 आयोटा। इसका स्क्वायरिंग करेंगे और उस क्वाड्रेटिक से गिवन एक्सप्रेशन को, गिवन जिसकी वैल्यू निकालनी है, यू आर गोइंग टू डिवाइड दैट। Further is about a very simple thing, quadratic equations with complex roots. नॉर्मली आपने 10th तक क्या करा था, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया था। एक तो हमें पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री 2 है,
उसके दो रूट्स हो रहे हैं एट द मोस्ट। रिपीटेड रूट आ सकता है, इमेजिनरी आ सकता है। और अगर क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने सीख लिया था, डी निकालना। ये सब कुछ क्विक आपका है जो कर चुके हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहा था, और रूट्स वर गिवन बाय इसको अगर मैं सिंपलर फॉर्म में लिखूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो इस तरह से दोनों रूट्स आ जाते हैं। बट इन केस इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, तब हमने कहा था कि इक्वेशन डू नॉट हैव दी रियल रूट्स। तो 10th तक तो हम रुक गए थे, बट अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स डोमेन की बात कर चुके हैं, वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट गेटिंग दी रूट्स इन दी आयोटा वाली फॉर्म। सो इफ वी कंसीडर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये बिगिनिंग के लिए बहुत इजी लिया है, इसे सॉल्व करना है। ये इसके इक्वल आ गया, क्या मतलब x हो गया प्लस माइनस रूट माइनस 3, और रूट माइनस 3 हो गया रूट 3 आयोटा। दैट इज रूट्स क्या होगा इसके इक्वेशंस के, रूट 3 आयोटा और माइनस रूट 3 आयोटा। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। I hope the basic idea is clear. And now let's start with few more questions. आप चेक करिए, डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे। a इज रूट 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b एंड c। d निकाल दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, and this is 2 minus आई एम श्योर अब ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट है ये। माइनस 34 आ गया, एक तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो इमेजिनरी रूट्स हो गए, एंड एक्स इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। दैट्स 10th क्लास फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, सो दैट ये रूट 2 विद प्लस माइनस रूट 34 आयोटा बन जाएगा बाय 2 रूट 3। अगर ये थोड़ा फर्दर सॉल्व हो रहा होता, मान लीजिए अगर रूट 36 आ जाता तो 6 लिख देते, या और फैक्टर्स बन रहे होते। बट यहां क्या हुआ, दिस इज 2 इंटू 17, तो सेपरेट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। तो यूजुअल मेथड में जैसे आप सॉल्व करते रहे हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द ओनली थिंग। तो ये तो 1 मार्कर या सिचुएशनल एमसीक्यू में आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। The only difference here, the equation itself include iota. What does that mean? A is 3, B कितना हो गया 8 आयोटा, ये ध्यान से, और C है 3। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और याद रखिए आयोटा स्क्वायर माइनस दे देगा, विद माइनस माइनस 36, दिस इज माइनस 100,
नेगेटिव आ गया है, इमेजिनरी रूट्स फॉर्मूला substitute the values, root of -100 और चेक करिए रूट -100 कितना हो जाएगा, 10 आयोटा। रूट ऑफ -100 की बात हुई है, -1 इंटू 100, -1 का रूट आयोटा, 100 का रूट 10, तो दिस इज 10 आयोटा। बस इसके बाद तो एक बार प्लस के साथ ले लीजिए और एक बार नेगेटिव के साथ, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड 2 रूट्स। सो 2 आयोटा बाय 6 आयोटा बाय 3 हो गया, -18 आ गया, तो -3 आयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा अलग नहीं मिलेगा। These are few questions from your NCERT book only, miscellaneous में दिए हैं, so do them in your homework। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। आप फर्स्ट 6 वाले में LCM ले लो पहले, अगर तो 6 में बन गया 9x² माइनस 12x प्लस 20 इज 0। बस अब आप इसे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर देंगे। एंड देन कम्स द क्वेश्चंस फ्रॉम द असाइनमेंट। तो एक इस तरह के हैं, आप चेक करिए क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर होंगे, ये बस आयोटा इन्वॉल्व हो गया है, डी और ई पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। फॉलोड बाय these questions just for your practice, कुछ अलग चीजें नहीं है। तो आपने इसमें से मान लीजिए आपने आउट ऑफ 6 पार्ट्स से डू दीज 4 पार्ट्स ओनली, दैट इज ओके। पिछले जो वाले क्वेश्चन 5 पार्ट्स थे, अटेम्प्ट एनी 3 पार्ट्स, राइट। बट ए और बी एक जैसे हैं, तो ए कर लिया और सी कर लिया और ई कर लिया, इट इज ऑल अप टू यू। बाकी प्रैक्टिस है, यू डू ऑल दी क्वेश्चंस, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एक बार सारे ही कर लीजिए, नहीं तो यू मे डू फ्यू रिपीटेड या सिमिलर देखने में है, आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम रिमेंबर, असाइनमेंट का वर्क अपलोड करना है इन योर क्लासरूम, एंड आपका एक्टिविटी फाइल वो भी उसका आपको पीडीएफ जो भेजा था उससे फर्स्ट 5 एक्टिविटीज दैट इज टू बी अपलोडेड। बट फिजिकल सबमिशन फाइल्स का रहेगा, बट वो बाद में होगा। Any doubt to anyone? With this we finish with this chapter, and next we are going to start with sequence series followed by straight lines and limits. तो lot of अभी भी syllabus है जो pending है, and we have 1.5 month maximum. So be very sincere, focused, and do the work as assigned on daily basis. Do not postpone के deadline आएगी हम तब कर लेंगे, that won't be possible. Everyone mark your attendance in the chat box and then leave the class. Excuse me, Yes. sir. The term 1 will be in November, September. That will be in October 20th. Okay, sir. या 20th होगा, 22nd होगा, उसके आसपास रहेगा। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Okay. चले, quickly mark your attendance and then leave the class.
Sir, Yes. please add me in the WhatsApp group. आप उस ग्रुप में नहीं हो No, sir. तो आप किसी से भी लिंक ले लो, वो तो ओपन लिंक है उसका, और यू मैसेज मी इन अ व्हाट्सएप ग्रुप मेरे को पर्सनल लेवल पर, देन आई विल ऐड। Okay, ठीक है, sir. ओके।